हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं दीपिका शेखावत और आज हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सो ऑलराइट, लेट्स डाइव इनटू द fascinating world of genetic material, especially DNA. In the previous chapter, we learned about inheritance patterns and the genetic basis of these patterns thanks to the pioneering work of Gregor Mendel. Mendel's work laid the foundation for the genetics, but back in his time, the nature of hereditary factors he described wasn't fully understood. Over the next century, scientists worked tirelessly to identify what these mysterious factors were, eventually leading to the discovery that DNA, that is deoxyribonucleic acid, is the primary genetic material in most organisms. So now let's recall something from class 11. Nucleic acids like DNA and RNA are polymers of nucleotides. DNA and RNA are the two main types of nucleic acids in the living organisms. While DNA is the genetic material for most, RNA plays a unique role as well. Some viruses use RNA as their genetic material, but in most organisms, RNA serves as a messenger and performs additional roles. It acts as an adapter, structural component, and even a catalyst in some cases. So in this chapter, we are going to see DNA structure and function. Like what is the structure of the DNA replication, the transcription, genetic codes, translation, regulation of gene expression, and also about human genome project. So without any further ado, let's get started. So now, first of all, we'll take a closer look at DNA. DNA or deoxyribonucleic acid is a long polymer made up of deoxyribonucleotides. ओके, deoxyribonucleotides का जो पॉलीमर है, लॉन्ग पॉलीमर, उसे हम डीएनए या फिर deoxyribonucleic acid बोलते हैं. Think of it as a long coiled chain or thread that contains all of the genetic instructions necessary for building and maintaining an organism. Each unit in this long polymer is a nucleotide, and the total length of DNA can vary widely among organisms. The length of DNA is usually described by the number of nucleotides, or in double-stranded DNA by base pairs, that is BP. बेस पेयर कंसिस्ट ऑफ टू न्यूक्लियोटाइड. एक बेस पेयर में दो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, one on each strand of DNA that pair up through hydrogen bonds. जो दो बेस पेयर के बीच का जो बॉन्ड होता है, जो दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच का जो बॉन्ड होता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. This length is not just a random number, it's a characteristic unique to ईच ऑर्गेनिज्म. ये जो लेंथ होगी सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं होता है, ये बहुत ही स्पेसिफिक होता है, यूनिक होता है हर ऑर्गेनिज्म के लिए. सो नाउ लेट्स टुक few examples. The first example is bacteriophage lambda, जो कि एक बैक्टीरियल वायरस है with a longer DNA chain of around 48,502 base pairs. Next, we will talk about bacteriophage 5X174. This is a type of virus that infects bacteria and has a relatively short DNA containing about 5,386 nucleotides. Now we will talk about E. coli, that is Escherichia coli, a well-known bacterial species that has 4.6 million base pairs in its DNA, which is very long. Okay. Now we will talk about human DNA. So human DNA uh, in humans, each haploid cell like sperm or egg has a DNA length of 3.3 billion base pairs. Remember, in diploid cells, like most cells in our body, we have two copies of this DNA. So double the amount, so you will know like
how much DNA is present in a diploid cell. Now, if we talk about structure of DNA, now given that DNA can be incredibly long, you might wonder how it fits into the tiny nucleus of a cell. जो सेल होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है वो सेल्स ऑलरेडी बहुत छोटे होते हैं तो उसके अंदर उसका न्यूक्लियस और भी छोटा होगा ठीक है तो उसमें इतना लंबा डीएनए कैसे पैक होता है कैसे फिक्स होता है कैसे फिट होता है तो इसका जवाब है डीएनए के स्ट्रक्चर और पैकेजिंग में DNA wraps around special proteins called histones to form structures called nucleosomes. एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है हिस्टोन और डीएनए खुद को हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड रैप करता है और ऐसे ही जो पूरा लॉन्ग डीएनए होता है वो बीच बीच में से हिस्टोन प्रोटीन्स पे रैप होता जाता है और ये जो स्ट्रक्चर बनता है उसे कहा जाता है न्यूक्लियोसोम्स these न्यूक्लियोसोम्स फर्दर कॉइल एंड सुपर कॉइल ठीक है और फिर ये न्यूक्लियोसोम्स जो बन रहे हैं ये बाद में कॉइल होंगे और फिर जो कॉइल स्ट्रक्चर बनेगा वो फिर से कॉइल होगा सुपर कॉइल होगा enabling DNA to fit within the small space of a cell nucleus while still being accessible for reading and copying. So, in this chapter, we will explore how such a long DNA polymer is structured and how its length relates to its function in storing genetic information across various organisms. By understanding DNA's length and structure, you will gain a deeper insight into how life is encoded and maintained at the molecular level. So now let's unpack the structure of polynucleotide chain that is DNA. So focusing especially on DNA, we are now going to see the structure of polynucleotide chain. So first, let us discuss the components of a nucleotide. A nucleotide is the basic unit that makes up DNA and RNA. बहुत बेसिक यूनिट जो होता है डीएनए और आरएनए को जो फॉर्म करता है वो न्यूक्लियोटाइड होता है और उसके तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं पहला है नाइट्रोजनस बेस दूसरा है पेंटोज शुगर और तीसरा है फॉस्फेट ग्रुप अब जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स तो प्यूरिन्स में आते हैं एडेनाइन एंड गोनाइन और पिरिमिडिन्स में आते हैं साइटोसिन एंड थायमिन जो कि डीएनए में होता है थायमिन और अगर हम बात करें आरएनए की तो थायमिन रिप्लेस होके वहां पे आ जाता है यूरेसिल तो वो भी पिरिमिडिन्स में आता है उसके बाद अगर हम पेंटोज शुगर की बात करें the sugar can be deoxyribose in DNA and ribose in RNA. डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर रहता है वहां पे एक ऑक्सीजन मिसिंग होता है और राइबोस जो है वो आरएनए में होता है उसके बाद अगर बात करें फॉस्फेट ग्रुप की दिस लिंक्स द शुगर्स ऑफ एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स क्रिएटिंग द बैकबोन ऑफ द चेन इन डीएनए thiamine pairs with adenine while cytosine pairs with guanine. In RNA, uracil replaces thymine. T will pair with A, AT, GC. Okay, A will form a pair with T, T will form a pair with A. While cytosine that is C will form a pair with G or G will form a pair with C. But in case of RNA, thymine will be replaced by uracil. Now, let's see how a polynucleotide chain gets built up. A nucleotide is formed when a nitrogenous base attaches to first carbon of a sugar molecule through an N-glycosidic linkage, creating a nucleoside like adenosine or cytidine. When a phosphate group attaches to the 5' carbon of the nucleoside via a phosphoester linkage, a nucleotide is formed. It simply means कि जो शुगर मॉलिक्यूल है उसके फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस अटैच हो जाता है और कैसे अटैच होगा एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की मदद से और ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ ये जो अटैचमेंट हुआ नाइट्रोजनस बेस और शुगर मॉलिक्यूल का एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से इससे फॉर्म होता है न्यूक्लियोसाइड ओके अब
जो शुगर है उसका जो 5' कार्बन है वहां पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है और वो अटैच होगा फॉस्फोएस्टर लिंकेज से और उसके बाद फॉर्म होता है न्यूक्लियोटाइड। Then 3' to 5' phosphodiester linkages join these nucleotides into a long chain। और फिर जो phosphodiester linkages की मदद से ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ज्वाइन होते जाते हैं और एक लॉन्ग चेन फॉर्म होता है। Each chain has a 5' end with a free phosphate group and a 3' end with free OH group on the sugar। 3' end पे शुगर होगा और उसका OH ग्रुप फ्री होगा। उसके अलावा जो दूसरा एंड होगा वो वहां पे फॉस्फेट ग्रुप होगा जिसका 5' एंड फ्री होगा। दिस अरेंजमेंट इज क्रूशियल बिकॉज इट डिफाइंस द डायरेक्शनलिटी ऑफ द डीएनए चेन। डीएनए चेन का डायरेक्शन क्या किस तरफ है वो हमें इस अरेंजमेंट से ही पता चलता है। विथ वन एंड कॉल्ड 5' एंड एंड द अदर इज कॉल्ड 3' एंड। नाउ लेट अस सी द डिस्कवरी ऑफ डीएनए's structure। Friedrich first identified DNA in 1869 and called it nuclein. But it was in 1953 that James Watson and Francis Crick, using X-ray fraction data from Maurice Wilkins and Rosalind Franklin, proposed the double helix model. This model provided an elegant way to explain DNA's function as genetic material. So, what are the key features of this double helical structure or double helix model? So, according to this structure, the first thing is the two chains. DNA is made up of two polynucleotide chains or strands, we can call it, with a sugar phosphate backbone. The nitrogenous bases project inward, pairing with complementary bases from the opposite strand। दोनों strands पे जो complementary bases होंगे वो आपस में pairing करेंगे with hydrogen bond। Next is anti-parallel orientation। The two strands run in opposite directions, one from 5' to 3' and another from 3' to 5'। इट सिंपली मीन्स कि जो डीएनए है उसके दोनों स्ट्रैंड्स अपोजिट डायरेक्शंस में रन करते हैं। उसके बाद जो चीज उन्होंने उनका जो डबल हेलिक्स मॉडल था उसके की फीचर्स में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बेस पेयरिंग। बेस पेयर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि जो बेस पेयरिंग होते हैं अपोजिट स्ट्रैंड्स पे वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स की मदद से। सो एडेनाइन जो ए है वो पैर करता है विथ थायमिन यूजिंग टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। प्लीज रिमेंबर ए और टी के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है लेकिन दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और जब हम बात करते हैं गोनाइन और साइटोसिन की तो ये दोनों पैर करते हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स का यूज करके। दिस पैरिंग ऑलवेज मैचेस प्यूरिन विथ अ pyrimidine। सो ऑलवेज प्यूरिन का पैरिंग होगा विथ pyrimidine ensuring a constant width of double helix। Next is right-handed coil। The DNA strands coil in a right-handed manner with a pitch of 3.5 nanometers, which means there's one full twist every 10 base pair। मतलब हर 10 बेस पेयर्स पे एक पूरा ट्विस्ट आपको देखने को मिलेगा। Each base pair is about 0.34 nanometer apart। Next is base stacking। Each base pair is stacked on the top of the next। जो हर एक बेस पेयर जो एक बेस पेयर बनेगा उसके जस्ट ऊपर दूसरा बेस पेयर होगा। एडिंग स्टेबिलिटी टू द स्ट्रक्चर alongside the hydrogen bonds। Now, what is the importance of this complementary base pairing? The complementary nature of the DNA strand means that if we know the sequence of one strand, we can predict the other। अगर हमें एक strand का sequence पता चल जाता है तो हमें पता चल जाएगा कि next जो उसके दूसरा वाला strand है opposite strand है उसका sequence क्या होगा। Because हमें पता है अगर sequence बन रहा है ATGC
ए के सामने टी होगा, जी के सामने सी होगा। तो उस तरीके से हम जो नेक्स्ट जो अपोजिट स्ट्रैंड है उसका स्ट्रक्चर हम उसका जो सीक्वेंस है उसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। So this property allows DNA to replicate accurately, making two identical copies before cell division. Now let us understand the central dogma of molecular biology. So when we talk about the central dogma of molecular biology, the structure of DNA is also clarified how genetic information flows in a cell, leading Francis Crick to propose the central dogma, that is DNA to RNA and RNA to protein. This means the genetic information is transcribed from DNA to RNA and then translated into proteins, which perform most functions in the cells. However, in certain viruses like retrovirus, the flow of information can reverse from RNA to DNA. जो वायरसेस होते हैं वहां पे ये जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है वो रिवर्स हो सकता है। वहां पे आरएनए टू डीएनए जो इंफॉर्मेशन है वो जा सकती है। बाकी नॉर्मली क्या होता है, डीएनए से आरएनए में इंफॉर्मेशन ट्रांसक्राइब होती है और फिर वो जो आरएनए है वो ट्रांसलेट होके उससे प्रोटीन्स बनते हैं। So, this process is known as reverse transcription that occurs in retroviruses, which is reverse and is a notable exception to the central dogma. So, this is all about the structure of a polynucleotide chain. Let's dive into the fascinating topic of DNA packaging. How cells manage to fit the extremely long DNA molecules into the tiny space of a nucleus. डीएनए इतना ज्यादा लॉन्ग होने के बावजूद कैसे एक टाइनी न्यूक्लियस में फिट हो जाता है, उसकी पैकेजिंग कैसी होती है वो अब हम देखेंगे। So first of all, let us see the length of the DNA in a mammalian cell. Let's start by understanding just how long DNA is. DNA कितना लंबा होता है पहले वो हम अंडरस्टैंड करते हैं। In a typical mammalian cell, there are about 6.6 billion base pairs of DNA. एक टिपिकल मेमोलियन सेल में एक सेल में कितना बेस पेयर डीएनए होगा? 6.6 मिलियन बेस पेयर्स। और जो डिस्टेंस होता है बिटवीन ईच बेस पेयर इज अराउंड 0.34 नैनोमीटर्स। ओके, जो दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 0.34 नैनोमीटर्स। सो बाय मल्टीप्लाइंग these we can estimate the length of the DNA in cell। ठीक है, कितना लंबा डीएनए है, उसके अलावा उसके बीच का जो डिस्टेंस है बेस पेयर्स का, मतलब कितने लंबे बेस पेयर्स हैं, प्लस उनके बीच का डिस्टेंस क्या है। अगर हम उन्हें मल्टीप्लाई कर दे तो हमें जो डीएनए का लेंथ है वो पता चल सकता है। दैट्स अबाउट। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 6.6 बिलियन बेस पेयर्स थे, तो 6.6 बिलियन जो बेस पेयर होंगे उनको अगर हम लोग लिखे तो वो होगा 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर इंटू 0.34। और जब नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें उसको 10⁻⁹ के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर, उसका टोटल आंसर होगा 2.2 मीटर्स, यानी कि एक सेल में 2.2 मीटर्स जितना लंबा डीएनए होता है। अब अगर हम बात करें तो ये 2.2 मीटर्स ऑफ डीएनए जो है वो ईच सेल में होगा, yet the diameter of a typical nucleus is only 10⁻⁻⁶ meters। ठीक है, 2.2 मीटर डीएनए जब एक सेल न्यूक्लियस में फिट होना है, लेकिन न्यूक्लियस का जो डायमीटर है वो 10⁻⁻⁶ मीटर्स है, यानी कि सिर्फ 1 माइक्रोमीटर। विच मीन्स कि डीएनए को अगर इसमें फिट होना है तो उसको बहुत ही टाइटली पैक होना पड़ेगा। So now let us see DNA packaging in prokaryotes. I hope you know the meaning of prokaryotes, जिनका जो न्यूक्लियस होता है वो अंडर डेवलप्ड होता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में हम एग्जांपल लेंगे इकोलाई का। इन प्रोकैरियोट्स like E. coli, DNA is organized differently from eukaryotes. Prokaryotes
lack a defined nucleus, but DNA is still localized in a region called nucleoid. प्रोकैरियोट्स में जैसे कि मैंने अभी जस्ट बोला आपको कि न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं होता है, डेवलप नहीं होता है, लेकिन जो डीएनए है वो एक रीजन में लोकलाइज्ड रहता है जिसका नाम है न्यूक्लियोइड। जो डीएनए होता है इस रीजन में वो ऑर्गेनाइज होता है इनटू लार्ज लूप held by positively charged proteins. Since DNA is negatively charged, it binds well with the positively charged proteins. तो यहाँ पे क्या होगा, डीएनए ना बड़ी बड़ी लूप्स में ऑर्गेनाइज रहता है और वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स के अराउंड हेल्ड रहता है। डीएनए नेगेटिवली चार्ज है और पॉजिटिव जो प्रोटीन्स होंगे वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे, तो ये बहुत अच्छे से उनके साथ बाइंड हो जाएगा। So, to calculate the number of base pairs in E. coli DNA given its length, जो कि 1.36 mm है, we can rearrange the formula. अब क्या होगा कि अगर हमें जो नंबर ऑफ बेस पेयर्स अगर कैलकुलेट करने हो E. coli DNA में, तो हम कैसे करेंगे? पहले तो हमें उसका जो लेंथ है वो पता है 1.36 mm है। 1.36 mm को जब हम लोग मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻³ के साथ। तो जो फॉर्मूला यहाँ पे बनता है वो है नंबर ऑफ बेस पेयर्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द डीएनए अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द बेस पेयर। अगेन आई एम रिपीटिंग, द नंबर ऑफ बेस पेयर्स, कितने नंबर ऑफ बेस पेयर्स है वो डिपेंड, वो कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द डीएनए, डीएनए का लेंथ कितना है डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द बेस पेयर। अभी जो लेंथ ऑफ द डीएनए है वो गिवन है 1.36 mm, जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया है, जो कि होगा 1.36 इंटू 10⁻³ मीटर अपॉन जो बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस है वो भी हमें पता है कि वो होता है 0.34। ओके, और वो नैनोमीटर में था, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻⁹ के साथ। तो इट वुड बी 1.36 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 0.34 इंटू 10⁻⁹, जिसका अप्रोक्सीमेटली आंसर आता है 4 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट base pairs. Now let us see DNA packaging in eukaryotes. So in eukaryotes, packing DNA is more complex. DNA का पैकेजिंग जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ऑर्गेनाइज होता है विद स्पेशल प्रोटीन्स, जिसे बोला जाता है हिस्टोन्स। ठीक है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में भी बताया। हिस्टोन्स बेसिकली होते क्या है, हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं ड्यू टू अमीनो एसिड्स लाइक lysine and arginine. The positive charge helps them bind tightly with the negatively charged DNA, क्योंकि DNA नेगेटिवली चार्ज होता है, जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इसकी वजह से वो दोनों आपस में काफी टाइटली बाइंड हो जाते हैं। अब इसकी वजह से जब भी हिस्टोन प्रोटीन्स और डीएनए का जो बाइंडिंग होता है वो होगा उस पर्टिकुलर रीजन को जहाँ पे डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बाइंडिंग होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। सो नाउ लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम। फर्स्ट ऑफ ऑल we will see the histone octamer. Histones are arranged into groups of 8 molecules, that is histone octamer. हिस्टोन्स जो है हमेशा 8 ग्रुप के मॉलिक्यूल में अरेंज रहते हैं। डीएनए रैप्स अराउंड द ऑक्टामर टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसोम, और डीएनए जो है इस ऑक्टामर के अराउंड रैप हो जाता है और उससे क्या फॉर्म होगा, न्यूक्लियोसोम। रिजेंबलिंग अ बीड्स ऑन स्ट्रिंग, जो जैसे स्ट्रिंग के ऊपर बीड्स बाइंड हुए रहते हैं उस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। द स्ट्रक्चर व्हेन ऑब्जर्व्ड अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और ये स्ट्रक्चर ऐसा कब दिखेगा, जब हम उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। ईच न्यूक्लियोसोम कंटेन्स अबाउट 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए, और एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर डीएनए इंक्लूड हो जाते हैं, 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए। नाउ लेट अस सी chromatin. Chromatin is the combination of DNA and proteins within the molecules. First of all, let me show you the structure of nucleosome. So this is the structure of nucleosome. The center part, this is the histone protein, and this is also the part of histone, and it has 8 units, and this is the DNA that is getting wrapped around the histone protein, and this particular area, the binding area, is known as the nucleosome. So
जब डिफरेंट एरियाज में जो डीएनए का लेंथ होता है वहां पे बीच बीच में जहां जहां पे हिस्टोन्स और डीएनए का बाइंडिंग हुआ रहता है, न्यूक्लियोसोम्स का फॉर्मेशन हुआ रहता है, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जैसे किसी धागे में मोती आपने पिरोए हुए, लाइक बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ओके, तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक. So we were talking about chromatin. Chromatin is the combination of DNA and proteins within the nucleus. जो DNA प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होता है न्यूक्लियस के अंदर, उसे क्रोमेटिन कहा जाता है. The nucleosomes form the repeating units of chromatin. Under microscope, chromatin appears as beads, nucleosomes on a string. So this is how chromatin looks like. Now we will see the higher level of packaging. Chromatin fibers are further coiled and condensed to form chromosomes, especially visible during the metaphase stage of cell division. Okay, ये जो हायर लेवल ऑफ पैकेजिंग है, इसमें बेसिकली कुछ नहीं होता. जो क्रोमेटिन होता है वो फर्दर कॉइल होता है और कंडेंस हो जाता है, क्रोमोसोम्स फिर फॉर्म होते हैं. ठीक है, तो जितना द कंडेंस होगा उतना उसको स्पेस कम चाहिएगा, एंड दिस इज लाइक बिकॉज ऑफ दिस condensed packaging, this is because of this high order packaging, जो डीएनए है वो छोटे से न्यूक्लियस में फिट हो पाता है. और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, आपको अगर आपने जो सेल डिवीजन एंड साइकिल का जो चैप्टर अगर आपने पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि मेटाफेज स्टेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्लियरली विजिबल होते हैं जब सेल डिवीजन हो रहा होता है. For higher level packaging, other proteins called non-histone chromosomal proteins, जिसे NHC proteins कहा जाता है, help organize chromatin into more condensed structure. तो ये जो प्रोटीन होते हैं NHC प्रोटीन, वो क्रोमेटिन को और ज्यादा कंडेंस्ड स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं. Now let us see the types of chromatin. ओके, नॉट ऑल क्रोमेटिन इज इक्वली पैक्ड. सारे क्रोमेटिन सेम तरीके से इक्वली पैक्ड नहीं होते. कुछ रीजन्स जो है वो लूजली पैक होते हैं और कुछ जो है वो बहुत ज्यादा टाइटली पैक हो जाते हैं. तो जो लूजली पैक्ड होता है उसे हम यू क्रोमेटिन कहते हैं. ठीक है, लूजली पैक होता है. दिस एरियाज लाइटली स्टेन एंड ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं. इन एरियाज को जब हम स्टेन करेंगे तो बहुत लाइटली इनका स्टेन होगा और ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं. ठीक है, मीनिंग दे आर इन्वॉल्व इन जीन एक्सप्रेशन, यानी कि इनका ट्रांसक्रिप्शन होगा, ये जो है जीन के एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व रहेंगे. जो अदर रीजन्स होते हैं उन्हें हेटेरोक्रोमेटिन कहा जाता है, जो कि काफी डेंसली पैक होते हैं, टाइटली पैक होते हैं. ये जब इनको हम स्टेन करेंगे तो इनका डार्क स्टेन होगा और ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं. ठीक है, या यहाँ पे जीन का एक्सप्रेशन या फिर ये जीन के एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व होने वाले नहीं है. अब हम देखते हैं कि ये जो डीएनए का पैकेजिंग हो रहा है वो इम्पोर्टेंट क्यों है. तो this level of organization allows the cell to fit large amounts of DNA within a small nucleus. Okay, ये तो हमें पता ही चली गया है. फिर helps regulate gene expression by controlling access to specific regions of DNA, जैसे कि euchromatin versus heterochromatin. Then it maintains DNA stability and prevents tangling, especially during cell division. तो सेल डिवीजन के दौरान जो डीएनए है वो उलझ के ना रह जाए, उसका जो टैंगलिंग होता है उसको भी ये कंट्रोल करके रखता है, प्रिवेंट करके रखता है. So, the intricate system of histones, nucleosomes, and higher level of packaging is essential for DNA to be compact, organized, and functional inside the cell. So, understanding this structure also helps why cells can control which genes are active at any time, as the arrangement of chromatin affects how accessible the genes are for transcription. So, this is all about packaging of DNA helix. Now, let's talk about fundamental experiment in genetics conducted by Frederick Griffith in 1928. This experiment was key in understanding the concept of genetic transformation and was one of the first piece of evidence suggesting that bacteria could pass on genetic material. जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियाज में पास ऑन होता है टू द नेक्स्ट जनरेशन. उसके सबसे पहले जो पीस ऑफ एविडेंसेस थे वो किसने दिए थे? जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट ने दिए थे, जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया था. सो let's see the setup, that is the Streptococcus pneumoniae and its strains. Griffith worked with Streptococcus pneumoniae, the bacterium responsible for pneumonia.
जो निमोनिया होता है वो एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। और इसके साथ ग्रिफिथ ने काम किया। द बैक्टीरिया हैज टू मेन फॉर्म्स और स्ट्रेन्स, उसके दो मेन फॉर्म्स होते हैं जिसे स्ट्रेन्स हम बोल सकते हैं। पहला जो स्ट्रेन है जिसे बोलते हैं एस स्ट्रेन, एंड हियर एस स्टैंड्स फॉर स्मूथ। दिस बैक्टीरिया हैव अ म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट। इसके ऊपर कैसा कोट है? म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट है, जिसकी वजह से इसका एक स्मूथ अपीयरेंस होता है जब हम इसे कल्चर प्लेट पे ग्रो करते हैं। इस कोट की वजह से ये बैक्टीरिया विरुलेंट होता है, यानी कि दे कैन कॉज इन्फेक्शन। Okay, they can cause disease. When injected into mice, the S strain caused pneumonia and led to death of the mice. और जब ग्रिफिथ ने इस बैक्टीरिया को, इस एस स्ट्रेन को स्पेशली जब माइस में इंजेक्ट किया तो उसको निमोनिया हो गया और उसकी डेथ हो गई। The next strain is the R strain, and here R stands for rough. The R strain lacks the polysaccharide coat, और यहाँ पे जो आर स्ट्रेन होती है उसमें म्यूकस का पॉलीसेकेराइड कोट नहीं होता है, और इस वजह से इनका जो अपीयरेंस होता है कल्चर प्लेट पे वो रफ होता है। ये जो स्ट्रेन थी वो नॉन विरुलेंट थी, यानी कि वो डिजीज कॉज नहीं कर सकती है। ठीक है, जब इसको माइस में इंजेक्ट किया गया ये आर स्ट्रेन को, तो माइस जो है वो सरवाइव कर गए विदाउट डेवलपिंग द निमोनिया। और अगर निमोनिया डेवलप नहीं हो रहा है, दैट सिंपली मीन्स कि जो स्ट्रेन था वो नॉन विरुलेंट था। अब ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट क्या था? टू इन्वेस्टिगेट फर्दर, ग्रिफिथ कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट यूजिंग दीज टू स्ट्रेन्स। और ग्रिफिथ ने काफी सारे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए ये दो स्ट्रेन्स को यूज करके। Let us see the first part. He injected the mice with the S strain alive. ठीक है, जो S strain है उसको alive mice में इंजेक्ट कर दिया। तो as expected S strain तो virulent है, तो उसकी वजह से क्या होगा? जो माइस है उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि जो स्ट्रेन है वो विरुलेंट है, उसको डिजीज कॉज हो जाएगी। इन द सेकेंड पार्ट ही इंजेक्टेड माइस विद द आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन भी अलाइव था। अब माइस जो है वो सर्वाइव कर गए, जिसकी वजह से हमें पता चला कि जो आर स्ट्रेन है वो नॉन विरुलेंट है। थर्ड पार्ट में उन्होंने क्या किया? ही टुक हीट किल्ड एस्ट्रेन, मतलब जो एस्ट्रेन था, जो विरुलेंट जिसका विरुलेंस है, जो कि डिजीज कॉज करता है, उसको उन्होंने पहले हीट से किल कर दिया ये बैक्टीरिया को, और उसके बाद उसको इंजेक्ट किया इनटू माइस। सिंस बैक्टीरिया वर डेड दे कुडंट कॉज डिजीज, और माइस जो है वो सरवाइव कर गए। अब बैक्टीरिया डेड है तो ऑफ कोर्स डिजीज नहीं होगा, तो माइस सरवाइव कर गए। अब क्रिटिकल पार्ट क्या है? फाइनली ग्रिफिथ ने इंजेक्ट किया माइस को विद अ मिक्सचर ऑफ हीट किल्ड एस्ट्रेन एंड लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। यानी कि जो विरुलेंस वाला एस्ट्रेन है उसको तो हीट किल्ड कर रखा है, और जो आर स्ट्रेन है जो कि अ, जिसका जो कि नॉन विरुलेंट है, जिसका विरुलेंस नहीं है, जो डिजीज कॉज नहीं कर पा रहा है, जो रफ स्ट्रेन है उसको अलाइव, ठीक है, बैक्टीरिया को, दोनों का मिक्सचर जो है उसको इंजेक्ट किया। अब नाउ इंडिविजुअली बोथ दीज कंपोनेंट्स वर हार्मलेस। के लिए तो दोनों ही हार्मलेस थी, ठीक है, जो डेड आर एस्ट्रेन है और लाइव आर स्ट्रेन है। हावेवर अनएक्सपेक्टेडली क्या हुआ? माइस जो है वो मर गए। When Griffith examined the dead mice, he found live strain bacteria in their bodies. और जब उनकी बॉडीज को, डेड बॉडीज को ग्रिफिथ ने एग्जामिन किया, तब उन्हें पता चला कि वहां पे लाइव एस्ट्रेन बैक्टीरिया मौजूद है। जबकि लाइव जो एस्ट्रेन था उसे तो हमने हीट किल्ड करके उन्होंने इंजेक्ट किया था। तो ग्रिफिथ का कंक्लूजन क्या निकला वो देखते हैं कि ये कैसे हुआ। Griffith concluded that something from heat-killed S strain had been transferred to the live R strain. यानी कि जो हीट किल्ड वाला एस स्ट्रेन था उसमें से कुछ तो ऐसा था जो ट्रांसफर हो गया जो लाइव आर स्ट्रेन थी उसमें, enabling the R strain to transform and become virulent like S strain, जिसकी वजह से R strain जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गए और वो विरुलेंट बन गए जैसे कि S strain हुआ करता था। एंड ही कॉल दिस अननोन फैक्टर द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। और जो अननोन फैक्टर था ना जिसकी वजह से जो आर स्ट्रेन थी वो विरुलेंट हो गई, उसको उन्होंने क्या नाम दिया? उस अननोन फैक्टर को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। दिस प्रिंसिपल अलाउड द आर स्ट्रेन टू डेवलप
डेवलप अ स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट, और उनके अंदर जो है एक स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट जो है वो डेवलप हो गया था, जिसकी वजह से वो एस ट्रेन की तरह बन गए थे, देयरफॉर विरुलेंट बन गए थे। तो एक बड़ा सवाल ये है, व्हाट वाज दिस प्रिंसिप ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था ये आखिर था क्या? एट द टाइम Griffith don't know what the transforming principle was. He showed the genetic material could be transferred from one organism to another. उन्होंने बताया कि कुछ जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफर हो रहा है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, जिसकी वजह से उसके ट्रेड चेंज हो जाते हैं, लेकिन वो उसका जो एग्जैक्ट बायोकेमिकल नेचर था उस जेनेटिक मटेरियल का, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे। लेटर एक्सपेरिमेंट्स थे जिन्होंने रिवील किया कि डीएनए वाज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, डीएनए था वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, confirming it as the molecule responsible for heredity. So the importance of Griffith's work is Griffith's experiment was revolutionary because it showed that the traits could be transferred from one bacterium to another through a molecular substance. It laid the groundwork for future research, eventually leading to the discovery of DNA as a genetic material in all living organisms. So the discovery opened up a new field in biology, showing that genetic information can be passed down and transformed, which was essential to understanding genetics, inheritance, and molecular biology.
Now we will discuss the properties of genetic material and understand why DNA is the primary genetic material. हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे जेनेटिक मटेरियल की और हम ये पता लगाएंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि डीएनए ही प्राइमरी जेनेटिक मटेरियल क्यों है और आरएनए के इतने असेंशियल रोल्स क्यों होते हैं। वो आरएनए जो है काफी एसेंशियल रोल्स सर्व करता है इन द बॉडी प्रोसेसेस, तो उसके रोल्स इतने असेंशियल क्यों होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डीएनए वर्सेस आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो जो हर्शी और चेज का एक्सपेरिमेंट था उसने फॉर्मली ये तो बता दिया था कि जो डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल होता है मोस्ट ऑर्गेनिजम्स में। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो आरएनए को एज ए जेनेटिक मटेरियल यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल टोबैको मोज़ेक वायरस एंड क्यूबी बैक्टीरियोफाज। इस वजह से साइंटिस्ट को ये एक्सप्लोर करना पड़ा कि जो डीएनए है वो ज्यादा प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल क्यों है और जो आरएनए है उसके इतने इतने ज्यादा डायनेमिक रोल्स क्यों हैं, जैसे कि बीइंग अ मैसेंजर और एन adapter. So let's break down the four key properties that a molecule must have to serve as a genetic material and analyze how DNA and RNA meet these criteria. तो जो पहला क्राइटेरिया है जो किसी भी मटेरियल को एज ए जेनेटिक मटेरियल एक्ट करने देता है वो है एबिलिटी टू रेप्लिकेट। एबिलिटी टू रेप्लिकेट का मतलब है कि वो खुद से खुद की कॉपीज बनाना चाहिए। ठीक है, रेप्लिकेशन का मतलब ये होता है कि जेनेटिक मॉलिक्यूल जो होता है, जेनेटिक मॉलिक्यूल जो होता है वो अपनी कॉपीज बनाता है। अब जो जेनेटिक मटेरियल है अगर उसको खुद का जो इंफॉर्मेशन है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास ऑन करना है तो उसका अपने आप डुप्लीकेट होना बहुत जरूरी होता है। और डीएनए और आरएनए दोनों ही इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं क्योंकि उनके पास एबिलिटी है टू फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री बेस पर, जहाँ पे ए टी से बेस पर फॉर्म करता है। अगर आरएनए की बात करें तो थायमिन की जगह यूरेसिल होगा और जी जो है वो सी के साथ बेस पेयरिंग फॉर्म करता है, अलाउिंग ईच स्ट्रैंड टू सर्व एज अ टेम्पलेट फॉर एप्लीकेशन। इसकी वजह से जो दोनों ही स्ट्रैंड्स होती है डीएनए की वो एक टेम्पलेट की तरह काम कर सकती है फॉर एप्लीकेशन। जो प्रोटीन्स होते हैं ऑन द अदर हैंड वो सेल्फ रेप्लिकेट नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग सिस्टम नहीं होता है। इसकी वजह से प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम नहीं कर पाते हैं। जो सेकेंड क्राइटेरिया वो है स्टेबिलिटी एंड केमिकल एंड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी जो होता है वो दूसरा क्राइटेरिया में आता है। जेनेटिक मटेरियल जो है उसका स्टेबल रहना बहुत जरूरी होता है अक्रॉस एन ऑर्गेनिजम्स लाइफ स्टेजेस, एजेस एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। डीएनए जो है वो काफी ज्यादा स्टेबल होता है उसके डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर की वजह से और उसमें कोई भी रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। ठीक है, रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप ना होने की वजह से वो कहीं पे भी आलतू फालतू रिएक्शन नहीं करेगा, वो स्टेबल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल DNA lacks the second OH group, 2' OH group found in RNA, जो कि RNA में होता है, which makes RNA more reactive and less stable, जिसकी वजह से RNA जो है ज्यादा रिएक्टिव रहता है लेकिन स्टेबल और कम स्टेबल रहता है। RNA is less stable and more susceptible to degradation because it has a 2' OH group, making it reactive and easily degradable. RNA can also act uh, as a catalyst in some reactions which adds to its reactivity. अब कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है तो डेफिनेटली रिएक्ट कर पा रहा है तभी मतलब कैटलिस्ट की तरह काम कर सकता है वो। सो ये जो स्टेबिलिटी है डीएनए की ये एक मतलब काफी एविडेंट थी ग्रिफिथ्स एक्सपीरियंस में, जो हीट किल्ड बैक्टीरिया ने रिटेन किया था उनका जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक प्रॉपर्टीज को, शोइंग डीएनए रेजिस्टेंस टू द टेम्परेचर। तो यहाँ पे एक छोटा सा हमें डिफरेंस देखने को मिल गया कि स्टेबिलिटी वाइज डीएनए बेटर है। तो यही इसी की वजह से एक हमें आइडिया लग जाता है कि ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में डीएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों होता है। उसके बाद एबिलिटी टू म्यूटेट फॉर इवोल्यूशन। म्यूटेशन तो आपको पता ही होगा कि जो डीएनए का सीक्वेंस होता है उसमें जब चेंजेस आ जाते हैं तो उसे म्यूटेशन बोलते हैं। तो किसकी जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा उसके अंदर जो म्यूटेशन की एबिलिटी होती है वो होनी चाहिए ताकि इवोल्यूशन हो सके। टू अलाउ फॉर इवोल्यूशन जेनेटिक मटेरियल मस्ट बी केपेबल टू स्लो चेंजेस। छोटे छोटे चेंजेस स्लोली अगर उसमें आ रहे हैं, म्यूटेशन हो रहा है जो कि दैट इंट्रोड्यूस जेनेटिक डाइवर्सिटी। बोथ आरएनए एंड डीएनए कैन म्यूटेट, दोनों ही म्यूटेट हो सकते हैं। हाउएवर आरएनए ज्यादा फास्ट रेट पे म्यूटेट होता है ड्यू टू इट्स इंस्टेबिलिटी। अब ये फास्टर रेट पे म्यूटेट होना भी एक अच्छी चीज नहीं है
दिस इज वाई आरएनए जो है वायरस दिस इज वाई आरएनए वायरसेस टेंड टू इवॉल्व क्विकली, और वो जल्दी क्विकली इवॉल्व हो जाते हैं, अडेप्टिंग रैपिडली टू देयर एनवायरमेंट्स। आपने कोविड में भी देखा होगा कि वो एक वायरस था, तो बहुत जल्दी म्यूटेट हो जा रहा था, बहुत जल्दी हमें उसके नए स्ट्रेन देखने को मिल रहे थे, जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स थे, ठीक है, वो इसी वजह से, क्योंकि आरएनए जब आपका जेनेटिक मटेरियल होता है तो बहुत जल्दी अपनी इनस्टेबिलिटी की वजह से जल्दी म्यूटेट हो जाता है, ठीक है। तो डीएनए जो है वो स्टेबल है, हमें पता है, लेकिन स्टिल उसमें म्यूटेशंस आ सकते हैं, अलाउइंग फॉर इवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस, ठीक है, दो एट अ स्लोअर एंड मोर कंट्रोल्ड रेट, लेकिन वो जो म्यूटेशंस होंगे वो स्लो रेट पे होंगे। अब जो लास्ट वाला है वो है एबिलिटी टू एक्सप्रेस ट्रेट्स, मेंडेलियन कैरेक्टर्स। एबिलिटी टू एक्सप्रेस ट्रेट्स का मतलब क्या होता है कि जो डीएनए है उसका आफ्टर ऑल द प्रोसेसेस एक प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए, ठीक है, उसे बोलते हैं हम एक्सप्रेशन। Genetic material must be able to express itself in the form of observable traits or Mendelian characters. RNA can directly code for protein synthesis, uh, allowing it to express characters easily and quickly. डीएनए भी, आरएनए क्या है, डायरेक्टली प्रोटीन के लिए कोड कर सकता है, प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है, जिसकी वजह से उसके जो कैरेक्टर्स है वो इजीली और क्विकली एक्सप्रेस हो जाते हैं। लेकिन जो डीएनए होता है उसको आरएनए चाहिए होता है टू एक्सप्रेस इट्स इंफॉर्मेशन। डीएनए ट्रांसफर करता है अपने जेनेटिक कोड को एमआरएनए पे, जो कि मैसेंजर आरएनए होता है, विच देन गाइड्स प्रोटीन सिंथेसिस, और उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस होता है। द प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी इन द सेल हैज इवॉल्व्ड टू वर्क अराउंड आरएनए, suggesting RNA's original role in the coding for traits. Now, let us see why DNA is preferred genetic material. अब DNA ही preferred genetic material क्यों है? क्योंकि हमने तो अभी चार characteristics, जो चार properties और requirements होती है वो हमने देख ली है। अभी हमें देखते हैं कि डीएनए प्रिफर्ड मटेरियल क्यों है। Although both DNA and RNA can function as a genetic material, DNA is preferred for storing genetic information for several reasons. पहला है स्टेबिलिटी, ठीक है, दूसरा है रिड्यूस्ड रिएक्टिविटी, क्योंकि डीएनए में जो है 2' OH ग्रुप नहीं होता है, ठीक है, इस वजह से ज्यादा रिएक्टिविटी उसकी नहीं होती। स्टेबिलिटी का जैसे मैं आपको ऑलरेडी बताया, और म्यूटेशन का रेट जो है वो भी काफी लो है, इस वजह से जो है डीएनए जो है वो ज्यादा प्रिफर्ड है एज अ जेनेटिक मटेरियल। अब हम एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जो कि है आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस, द आइडिया that RNA was the first genetic material on the earth even before DNA and proteins, ठीक है। Why RNA was the first genetic material? साइंटिस्ट ने ऐसा बिलीव किया कि आरएनए जो है वो पहला जेनेटिक मटेरियल था, क्योंकि इट हैज यूनिक प्रॉपर्टीज दैट अलाउ इट टू स्टोर इंफॉर्मेशन एंड एक्ट एज ए कैटलिस्ट, ठीक है, इंफॉर्मेशन भी स्टोर कर सकता है और कैटलिस्ट की तरह भी एक्ट कर सकता है। इन अर्ली लाइफ फॉर्म्स आरएनए जो है ये दोनों काम कर सकता था, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को भी स्टोर कर सकता था जैसे कि आज डीएनए करता है, और एक एंजाइम की तरह भी काम कर सकता था टू स्पीड अप essential biochemical reactions. Today we usually think of proteins as the main catalyst, जो कि enzymes होते हैं इन सेल्स, लेकिन आरएनए जो है वो भी सर्टेन रिएक्शंस को ऑन इट्स ओन कैटलाइज कर सकता है। अगर आपको पता हो तो जो आरएनए के एंजाइम्स होते हैं उनको राइबोजाइम्स कहा जाता है, जो कि हमने शायद कुछ प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है। एविडेंस सपोर्टिंग आरएनए एज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, उन एविडेंस के बारे में देखते हैं कि जो सपोर्ट करते हैं कि आरएनए जो है फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था। There are key pieces of evidence suggesting RNA's early role in life. Basic life processes centered around RNA. Some of the most important cellular processes जैसे कि मेटाबॉलिज्म है, ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन का मतलब जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, जो स्प्लाइसिंग होता है, आरएनए का एडिटिंग जिसमें होता है, ये सब जो है इवॉल्व हुए हैं अराउंड आरएनए. This suggests that RNA was central to life's origin. राइबोजाइम्स, जैसे कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें राइबोजाइम्स कहा जाता है, जो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, दे हेल्प फॉर्म बॉन्ड्स ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। दे द फैक्ट दैट आरएनए not protein performs this role in some reactions indicates RNA's early importance in life's chemical processes. Now, why DNA replaced RNA? आरएनए की जगह डीएनए क्यों आ गया? तो उसका बहुत सारे रीजन हो सकते हैं।
सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है कि वो बहुत मतलब अनस्टेबल है कंपेयर टू डीएनए। ठीक है, फिर आरएनए की जो रिएक्टिविटी है, जो उसमें 2-OH ग्रुप है, जिसकी वजह से वो काफी जल्द वो बहुत ही रिएक्टिव है, इजीली ब्रेकेबल है, डिग्रेडेबल है। फिर उसके बाद दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जो डीएनए का इवोल्यूशन है ओवर टाइम, ठीक है, ओवर टाइम डीएनए इवॉल्व हुआ फ्रॉम आरएनए with certain chemical modification that made it more stable. For example, DNA lacks 2-OH group, making it less reactive and more stable for storing genetic information reliably. फिर उसके बाद उसका जो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड हमें पता है, विच प्रोवाइड्स एडिशनल स्टेबिलिटी एंड अलाउज फॉर अ रिपेयर मैकेनिज्म. When mutation occur, the complementary strand can guide the repair. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है. अगर दो स्ट्रैंड में से किसी एक पे कहीं पे छोटा सा म्यूटेशन अगर आया है, तो जो सामने वाली स्ट्रैंड है वो उसको वापस से रिपेयर कर सकती है, क्योंकि वहां पे उसको पता है कि यहाँ पे एग्जैक्टली कौन सा न्यूक्लियोटाइड होना चाहिए था. ठीक है, तो वो उसको रिप्लेस करके उसका जो रिपेयर है वो कर सकती है, मेकिंग डीएनए एन इवन मोर सिक्योर स्टोरेज मटेरियल. सो दिस इज ऑल अबाउट द आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस. तो फाइनली अब हम बात करने वाले हैं रेप्लिकेशन की. ठीक है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन and how it was proposed by Watson and Crick when they discovered the double helical structure of DNA. First of all, we will see कि DNA replication आखिरकार होता क्या है. DNA replication वो प्रोसेस है जिससे DNA खुद की बहुत सारी कॉपीज बनाता है. ठीक है, उसको खुद को रेप्लिकेट करता है, डुप्लीकेट करता है. दिस इज असेंशियल बिकॉज जब एक सेल डिवाइड होता है तो जो नया सेल है उसको तो एग्जैक्ट कॉपी चाहिएगा ना डीएनए का, ताकि वो फंक्शन कर सके प्रॉपरली. मान लो एक सेल है, अभी उसमें डीएनए है, ओके, वो डिवाइड होगा, उससे उस एक सेल से अब दो सेल्स बन जाएंगे. तो अगर वो डीएनए, उसमें जो डीएनए है अगर वो रेप्लिकेट नहीं होता है, तो फिर क्या होगा, जो डीएनए का अमाउंट हो सकता है कि दोनों में इक्वली ना जाए. जो मतलब डीएनए है वो अगर हाफ हो जा रहा है तो वो वैसे दिक्कत करेगा. अगर एक में चला जाता है दूसरा सेल किसी काम का नहीं है, तो पहले डीएनए का जो रेप्लिकेशन उसका डबलिंग होना जरूरी है. डीएनए डबल हो जाएगा तो दोनों सेल्स को इक्वल अमाउंट में डीएनए मिल जाएगा, एग्जैक्ट डीएनए मिल जाएगा जो कि पेरेंट सेल में था. इसलिए डीएनए का फंक्शनिंग प्रॉपरली होना जरूरी है, और फिर डीएनए के बेसिस पे ही प्रोटीन्स वगैरह सिंथेसाइज होंगे. ठीक है, आगे का जितना भी काम होगा सारा डीएनए के बेसिस पे होगा, और वो जो सेल है वो आगे फंक्शन कर पाएगा. सो अब हम देखते हैं वॉटसन और क्रिक का सेमी कंजर्वेटिव मॉडल. जब वॉटसन और क्रिक ने डिस्कवर किया जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, दे प्रपोज एन आइडिया फॉर हाउ डीएनए कुड रेप्लिकेट. उन्होंने एक आइडिया प्रपोज किया कि डीएनए रेप्लिकेट कैसे होता है. तो उनका जो आइडिया था वो बेस्ड था ऑन स्पेसिफिक बेस पेयरिंग रूल्स. ठीक है, उन्होंने जो कि उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, जैसे कि ए जो है वो टी के साथ ही बॉन्ड फॉर्म करेगा, जी जो है वो सी के साथ ही बॉन्ड फॉर्म करेगा, ए और टी जो है वो डबल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, और जी और सी ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स. तो देखते हैं कि उन्होंने क्या सजेस्ट किया. सबसे पहले उन्होंने बात की स्ट्रैंड सेपरेशन की. जब रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं. ठीक है, अलग अलग हो जाते हैं. अब यहाँ पे दोनों ही स्ट्रैंड सेपरेट हुए हैं, ईच स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट. जो दोनों ही टेम्पलेट है वो एक टेम्पलेट की तरह, दोनों ही जो स्ट्रैंड्स बने हैं वो एक टेम्पलेट की तरह काम करेंगे. ठीक है, मतलब एक पैटर्न की तरह काम करते हैं टू क्रिएट अ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड. फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए मॉलिक्यूल. उसके बाद क्या होगा, नए डीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा. सो बाय द एंड ऑफ रेप्लिकेशन ईच न्यू डीएनए मॉलिक्यूल वुड हैव वन ओल्ड स्ट्रैंड, मतलब जो ओरिजिनल स्ट्रैंड से आएगी, एंड वन न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड. तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो डीएनए पहले अनकॉइल हुआ है, सेपरेट हुआ है. ठीक है, एज यू कैन सी हियर, ये डीएनए यहाँ पे, ये वाला ऊपर डीएनए जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में है, लेकिन यहाँ पे जो दोनों स्ट्रैंड्स है वो सेपरेट हो गई हैं. ठीक है, अब यहाँ पे ये जो रेड कलर की स्ट्रैंड है वो ओरिजिनल स्ट्रैंड है. ठीक है, और ये जो ब्लू वाली स्ट्रैंड आपको दिख रही है ये बेस पेयरिंग से नई फॉर्म हुई है. तो ये पूरा एक सेपरेट डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बन गया, और इस साइड भी बन गया. तो ये दोनों ही डीएनए जो बने हैं, अब इसमें एक स्ट्रैंड ओरिजिनल है और एक न्यूली फॉर्म स्ट्रैंड है. This method of replication is called semi-conservative replication.
अब आप समझो इसको सेमी कंजर्वेटिव क्यों बोला गया है, क्योंकि दो स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड पुराना है, मतलब जो पहले वाला डीएनए है वो आधा कंजर्व हुआ है, ठीक है, आधा नया है आधा पुराना है, तो आधा कंजर्व हुआ है। Because each new DNA molecule conserves one of the original strands and includes one new strand. जो जितने भी डीएनए मॉलिक्यूल बनेंगे उसमें एक पुराना स्ट्रैंड होगा और एक नया स्ट्रैंड होगा। Now, why it is called semi-conservative? Semi का मतलब होता है हाफ और कंजर्वेटिव का मतलब होता है प्रिजर्व करना। तो दिस मॉडल इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव बिकॉज हाफ जो डीएनए वो ओरिजिनल वाला है जो कंजर्व हुआ है, और जो हाफ डीएनए मॉलिक्यूल है वो नया वाला है। So this model of DNA replication turned out to be correct and was later confirmed by experiments, showing that DNA is copied accurately and ensures genetic continuity from one generation of the cells to the next.